नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आप में से कुछ लोग तो शायद पीपा मूवी को देख चुके होंगे, लेकिन ये जो मूवी है दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द बैटल ऑफ गरीबपुर। लेकिन क्या आपको बैटल ऑफ गरीबपुर का सही इतिहास मालूम है कि वहां पे कैसे 45 कैवलरी रेजिमेंट ने खून से अपने इतिहास का पहला पन्ना लिख दिया था? आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय फौज के PT-76 टैंक्स फ्रॉम द 45 कैवलरी रेजिमेंट और द 14 पंजाब नवा अकाल पाकिस्तानी फौज के एक ब्रिगेड और एक आर्मर्ड स्क्वाड्रन को नेस्त नाबूद कर दिया था। दुश्मन के आर्मर्ड स्क्वाड्रन को कंप्लीटली तबाह कर दिया था। आज आपको बताएंगे मेजर दलजीत सिंह नारक की कहानी, जो 45 कैवलरी के इतिहास का पहला पन्ना एक्चुअली में अपने खून से लिख के गया है। तो जैसे आपको पता था कि बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई में भारतीय फौज इवेंचुअली ज्वाइन करने वाले थे और मुक्ति बाहिनी गेरिला फाइटर्स ऑलरेडी पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट अपना राइटफुल लिबरेशन वॉर कमेंस कर चुके थे फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च 1971 इटसेल्फ। और भारतीय फौज ने मुक्ति बाहिनी को खुले आम सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, alongside providing them with arms and ammunition with training। उसके बाद भारतीय फौज was getting ready to intervene in the liberation of Bangladesh and aid the मुक्ति बाहिनी to defeat the Pakistani armed forces। तो भारतीय फौज के 2 कोर was actually on the southwestern side of the Bangladesh border। The 2 corps was commanded by Lieutenant General Tapishwar Narayan Raina और इसमें 2 डिवीजन थे, the 4 Mountain Division led by Major General M.S. Barar and the 9 Infantry Division led by Major General Dalbir Singh। The armor support for these 2 divisions was actually given by the 45 Cavalry Regiment। 45 Cavalry Regiment के कमांडर थे Lieutenant Colonel D.S. Jamwal। The 45 Cavalry Regiment was armed mostly with PT-76 light amphibious tanks। ये टैंक्स का एक सुविधा था कि these tanks could cross rivers, क्योंकि इन टैंक्स में फ्लोटर्स था and they had centrifugal pumps जो उनको पानी में चलने का मदद कर सकते थे। पूरा का पूरा रेजिमेंट इन दोनों डिवीजन मतलब इस पूरे कोर को सपोर्ट करने के लिए निकल पड़े थे फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट एरिया एट कांचरापाड़ा। तो जैसे आपको दिखाया गया है, 2 corps was under the command of Lieutenant General Tapishwar Narayan Raina। उसमें था the 4 Mountain Division and the 9 Infantry Division। 4 Mountain Division had the armored support from the 45 Cav, which was given by the Alpha Squadron under the command of Major P.K. Batra, while 2 corps का 9 Div had 3 armored squadrons for their support। The Bravo Squadron under the command of Major A.K. Gulati, Charlie Squadron under the command of Major Daljit Singh Narak और Delta Squadron under the command of Major Sonpar। So 9 Infantry Division had 3 infantry brigades। The 350 Infantry Brigade जिसका अंडर था the 26 Madras Regiment, the 4 Sikh Regiment and the 1st Jack Riff। The 42 Brigade had the 14 Punjab Regiment जिसके बारे में हम बैटल ऑफ गरीबपुर के लिए बात करेंगे। The 2 Sikh Light Infantry and the 19 Maratha Light Infantry। 32 Brigade had the 8 Madras Regiment, the 7 Punjab Regiment and the 13 Dogra। अभी एक और चीज देखिए, यहाँ पे हमने जो टैंक ट्रूप्स दिखाया है, मतलब 1 2 3 4 टोटल 4 ट्रूप होते हैं एक स्क्वाड्रन ऑफ टैंक्स में। हर एक ट्रूप में है 3 टैंक्स, तो टोटल एक स्क्वाड्रन में होगा 12 टैंक्स। 3 टैंक्स 12 टैंक्स यहाँ पे। तो अभी दुश्मन के बारे में थोड़ा जानते हैं। The 2 corps of the Indian Army was actually poised against the 9 Infantry Division of the Pakistani Armed Forces। दुश्मन के ये डिवीजन was commanded by Major General M.H. Ansari and the division headquarters was at Faridpur। डिवीजन में 2 brigades थे, the 57 Infantry Brigade and the 107 Infantry Brigade, and the 107 Infantry Brigade had armor support from the 3rd Independent Armored Squadron। 3rd Independent Armored Squadron में पाकिस्तानी फौज के M24 शैफी टैंक्स भी थे।
Mostly the Pakistani army in Bangladesh had M24 Shafi tanks, or maximum of these tanks were posted in this area of operations of the Pakistani 9th Infantry Division. और पाकिस्तानी फौज के सबसे दमदार आर्मर सपोर्ट was the 3rd Independent Armored Squadron in this sector. मतलब in the operational area of the 107 Infantry Brigade in the Jasor sector. This is the map operational area जहां पे the 2 corps was going to operate. The 2 corps had the 4 Mountain Division and the 9 Infantry Division. जैसे आपको बताया गया था, दुश्मन का 9 Infantry Division का हेडक्वार्टर्स फरीदपुर में था और झिनाइदा में 57 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स था एंड जसोर में 107 Infantry Brigade का पोजीशंस था. 107 Infantry Brigade इस बोयरा सैलियन के आसपास एरिया लेके खुलना तक था. 57 Brigade had this much area up to the Padma River and including areas close to फरीदपुर. This entire area. 2 halves में अगर आप बांग्लादेश के इस साइड, considering this to be the border of India and Bangladesh, अगर आप बांग्लादेश के this side को फोकस करेंगे तो you can separate this 2 parts of the country in 2. This is India, so this road goes towards Kolkata. This is actually the Jasor road. This is the Boira salient. तो बैटल ऑफ गरीबपुर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको 9 इन्फेंट्री डिवीजन पे फोकस करना होगा एंड 9 डिव वाज मोस्टली फोकसिंग ऑन द जसोर सेक्टर. जसोर को कैप्चर करने के बाद इवेंचुअली द इवेंट्स ऑफ द वॉर टर्न makes the 9 div turn towards Khulna and the 4 divs heads directly towards Faridpur in this axis of advance. So this is going to be the axis of advance and the 107 Infantry Brigade is going to be the unit against which most of the fighting is going to take place. और इसी आसपास की जगह पे है द कबादक रिवर जिसको भारतीय फौज क्रॉस करने वाले हैं टू हेड टुवर्ड्स सम प्लेस क्लोज नियर बाय कॉल्ड एज गरीबपुर. पाकिस्तानी फौज के 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांडर था ब्रिगेडियर हयात खान और नवंबर 1971 के महीने से ही भारतीय फौज ने ठान लिया था टू कमेंस देयर ऑपरेशंस इनसाइड बांग्लादेश. तो 20 नवंबर को सबसे पहले भारतीय फौज के 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड का 14 पंजाब नवा अकाल कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल आर के सिंह वाज गिवन ऑर्डर्स टू मूव इनसाइड गरीबपुर इनसाइड बांग्लादेश. तो ब्रावो, डेल्टा और अल्फा कंपनीज ने पहले कबादक नदी को क्रॉस करके इस बटालियन निकल चुके थे और उन्होंने कबादक नदी को क्रॉस करके अपना डिफेंसेस एस्टैब्लिश कर दिए थे. उसी रात को मेजर दलजीत सिंह नारंग और उनके चार्ली स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट ने अपना टैंक्स लेके बॉर्डर क्रॉस करना शुरू कर दिए एंड दे मेट अप विद द 14 पंजाब एट गरीबपुर. सुबह के 5 बजे तक सारे के सारे टैंक्स अंडर हेवी फॉग वहां पे पहुंच गए थे और चार्ली स्क्वाड्रन ने अपने टैंक्स को 14 पंजाब के डिफेंसेस के 200 या 250 मीटर आगे प्लेस किए थे एंड प्रिपेयर्ड फॉर एनी एनिमी असॉल्ट. जब चार्ली स्क्वाड्रन के टैंक्स अपने डिफेंसिव पोजीशन में बैठ गए थे तब रिसालदार आरपी सिंह अपने टैंक और कुछ ट्रूप्स फ्रॉम द 14 पंजाब रेजिमेंट को लेके वो आसपास के एरिया में स्काउटिंग करना शुरू कर दिए टू चेक फॉर पाकिस्तानी फोर्सेस. पूरा एक भारतीय फौज का बटालियन और एन एंटायर स्क्वाड्रन ऑफ टैंक्स बॉर्डर क्रॉस करके ईस्ट पाकिस्तान में बैठे थे, दुश्मन का इंतजार कर रहे थे. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ब्लू में है कबादक रिवर, नदियों को हम ब्लू में दिखा रहे हैं. इंडिया, दिस इज इंडिया, दिस इज द बोयरा सैलिएंट. तो 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड के 14 पंजाब और चार्ली स्क्वाड्रन हैज क्रॉस्ड द बॉर्डर एंड दे आर हेडिंग टुवर्ड्स गरीबपुर. गरीबपुर में आके वो बैठ जाएंगे. This area, red dotted line, including Chowgacha town, this is all under the command of the Pakistani 107 Infantry Brigade. ये जगह पूरा दुश्मन का इलाका है and this bulge will soon be captured by the Indian forces. तो अभी 14 पंजाब के बारे में थोड़ा जानते हैं about their own defenses और उनके खुद के preparations. तो जैसे आपको पता होगा 14 पंजाब रेजिमेंट के साथ नॉट ओनली द PT-76 टैंक्स फ्रॉम द चार्ली स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट आए थे, उनके साथ 102 इंजीनियरिंग रेजिमेंट भी आए थे. तो 20 नवंबर के रात को ही 14 पंजाब के एक रिकॉनेसेंस पेट्रोल को भेजा गया था अंडर द कमांड ऑफ मेजर AP विश्वनाथन.
मेजर विश्वनाथन अपने प्लेटून को लीड किए थे इनसाइड अ रिकॉग्निशंस एरिया नोन एज फतेहपुर, जो बांग्लादेश के 4 किलोमीटर अंदर था। उनके पेट्रोल में सबसे बहादुर जवान थे फ्रॉम ऑल द राइफल कंपनीज ऑफ द 14 पंजाब रेजिमेंट। तो तभी साउथ वेस्ट ऑफ जसोर में उनके पेट्रोल के साथ एक पाकिस्तानी पेट्रोल का क्लैश हुआ था और ये दुश्मन का पेट्रोल उस एरिया से भागने के लिए मजबूर हो गए थे। मेजर विश्वनाथन और उनके पेट्रोल तो सक्सेसफुल हो गए थे इन दिस असॉल्ट, लेकिन ये पता चल चुका था कि अनफॉर्चुनेटली द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज विल बी लॉस्ट। तो ये बात जब रेडियो में लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. सिंह को पता चला तो उन्होंने अपने बटालियन को अपना डिफेंसेस रेडी करने के लिए बोल दिए थे। बाय 3 AM on the 21st of November, all the companies of the 14 Punjab Regiment had set up their defenses on their positions. बटालियन के राइफल कंपनीज के साथ उनका एक हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश हुआ था और उनका एक तोपखाना भी था जहां पे 3 इंच मोर्टर का भी फायर सपोर्ट दिया गया था। उनके डिफेंसेस में हेवी मशीन गन डिटैचमेंट्स भी थे और आरसीएल गन डिटैचमेंट्स भी थे। मीनवाइल 14 Field Regiment was also involved in the battle. उनके artillery guns were going to be a big support for the 14 Punjab Regiment in the Battle of Garibpur. तो Captain P.P. Chaturvedi, the artillery observer, was dispatched to the 14 Punjab और उनके साथ कैप्टन गुरमुख सिंह गिल आने वाले थे और गरीबपुर के नॉर्थ में उन्होंने दुश्मन के एक आर्टिलरी बैटरी को देख लिया था एंड दे अटेम्प्टेड टू हिट दी पाकिस्तानी गन्स थ्रू ऑब्जर्व्ड आर्टिलरी फायर। तभी दूर से इन द कोल्ड एंड फॉगी एनवायरनमेंट कैप्टन गुरमुख सिंह को भी आवाज सुनाई दिया ऑफ टैंक्स इन द डिस्टेंस जो साउथ ऑफ चौगाछा जसोर रोड से आ रहे थे। लेकिन कैप्टन गुरमुख सिंह गिल और कैप्टन पीपी चतुर्वेदी डरने वालों में से नहीं थे और उन्होंने फॉग का इस्तेमाल किया ताकि वो दुश्मन के कॉलम्स के आसपास रह के अपने बटालियन को दुश्मन के पोजीशंस के बारे में कंटिन्यूअसली रिपोर्ट करता रहा। पाकिस्तानी फौज को तो यह खबर मिल गया था। एट 6:15 AM on the 21st of November दुश्मन ने बहुत भयंकर आर्टिलरी बैराज फायर करना शुरू कर दिया ऑन द डिफेंसेस ऑफ द 14 पंजाब। ये आर्टिलरी फायर इतना भयंकर था कि 14 पंजाब के जवानों ने ट्रेंचेस में बैठ गए थे एंड वेटेड फॉर द बैराज टू लिफ्ट। उसी टाइम को यूज करके दुश्मन के 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने अपना 2 बटालियंस, द 6 पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तानी एंड द 22 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट को विथ the entire 3rd Independent Armored Squadron composed of M24 Shafi tanks को भेज दिया था to crush the 14 Punjab and the Charlie Squadron at Garibpur. पहले 2 companies each from the 22 Frontier Force and the 6 Punjab Regiment with 6 tanks from the 3rd Independent Armored Squadron पहला हमला बोल दिए थे on the defenders of the 14 Punjab and Charlie Squadron. सबसे पहले उनको रिसालदार आरपी सिंह ने स्पॉट किया और रेडियो में अपने बाकी टैंक्स को उन्होंने इन्फॉर्म किया। द स्क्वाड्रन 2IC was कैप्टन बलराम सिंह मेहता और उन्होंने भी यह सुना ऑन द रेडियो एंड मेजर दलजीत सिंह नारक ordered the entire squadron for offensive readiness. दुश्मन ने जब हमला कर दिया तब उनको नेस्त नाबूद कर दिए थे इतना भयंकर टैंक फायरिंग से। टैंक टू टैंक बैटल में पाकिस्तानी M24 Shafi tanks were no match for the superiorly defending PT-76 tanks of Charlie Squadron. 14 पंजाब ने टैंक्स के ऊपर और दुश्मन के इन्फेंट्री के ऊपर फायर खोल दिए थे with fire support from the PT-76 tanks. गरीबपुर was actually an open area और दुश्मन के टैंक्स जब आ रहे थे उनको निशाना बना के डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन यह निशाना करना बहुत ही डिफिकल्ट था ड्यू टू द हेवी डेंस फॉग। तो भारतीय टैंक्स को अपने टैंक्स के मेन गन्स को एम करना पड़ रहा था एट रेंजेस लेस देन 300 मीटर्स। दिस इज अ वेरी क्लोज रेंज, लेकिन फिर भी दुश्मन के टैंक्स तबाह किए गए थे। एक दुश्मन का M24 शैफी टैंक्स तो 14 पंजाब के डिफेंसेस के पीछे चले गए थे, लेकिन 14 पंजाब ने अपने रिकॉइललेस राइफल से इस टैंक को तबाह कर दिया। चार्ली स्क्वाड्रन को इस जंग में लीड करते हुए, दुश्मन के टैंक्स को तबाह करते हुए मेजर दलजीत सिंह नारक आगे बढ़ रहे थे विथ हिज ओन टैंक, लेकिन सडनली दुश्मन का एक स्मॉल आर्म्स फायर उनको हिट किया।
वो एक्चुअली टैंक के क्यूपोला हैच ओपन करके दुश्मन के ऊपर नजर रख के ऑर्डर्स पास कर रहे थे। आपको पता होगा कि एक्चुअली एक PT-76 टैंक कैन अकोमोडेट 3 पीपल, लेकिन स्पेस और सेटिंग्स बनाया गया था इनसाइड ताकि कमांडर has to open up the cupola hatch and keep half of his body outside और अंदर एक और पर्सन को अकोमोडेट किया जा सके। तो क्यूपोला हैच ओपन था। मेजर दलजीत सिंह नारंग ऑर्डर्स पास करके दुश्मन के टैंक्स को तबाह कर रहा था। अपने स्क्वाड्रन को बहुत गैलेंटली लीड कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्मॉल आर्म्स का बर्स्ट हैड हिट हिम। वो तभी के तभी मारे गए थे। द फर्स्ट अटैक ऑन गरीबपुर बाय द एनिमी हैड फेल्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चार्ली स्क्वाड्रन का कमांडर मारा गया था। रिसालदार आरपी सिंह वाज रिकमेंडेड फॉर द वीर चक्र एंड फॉर हिज एक्सट्रीम गैलेंट्री इन लीडिंग हिज स्क्वाड्रन टू विक्ट्री। मेजर दलजीत सिंह नारंग वाज अवॉर्डेड द महावीर चक्र पोस्ट्यूमसली। मेजर दलजीत सिंह नारंग के मौत के बाद कैप्टन बलराम सिंह मेहता, द सेकंड इन कमांड ऑफ द स्क्वाड्रन, took over the charge of the squadron. तो 6 पंजाब रेजिमेंट का हमला सबसे जबरदस्त था ऑन द पोजीशंस ऑफ चार्ली कंपनी। सी कंपनी का जो ये रोड ब्लॉक का पोजीशन था, यहां पे 6 पंजाब पूरी तरह चढ़ गए थे एंड अनफॉर्चुनेटली चार्ली कंपनी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। चार्ली कंपनी को पीछे धकेलते हुए दुश्मन के 6 पंजाब ने ऑलमोस्ट 14 पंजाब के हेडक्वार्टर्स के तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिए और तभी भारतीय 45 कैवलरी रेजिमेंट के चार्ली स्क्वाड्रन के टैंक्स मूव ऑन करके दुश्मन के ऊपर फायर खोल दिए थे। आप सोचिए कि अगर चार्ली कंपनी पुश बैक हो जाते और 14 पंजाब के बटालियन हेडक्वार्टर्स कैप्चर हो जाता तो कितना बुरा हालत होता फॉर दिस इन्फेंट्री बटालियन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। चार्ली स्क्वाड्रन के टैंक्स बहुत हेल्प किए इन पुशिंग बैक द 6 पंजाब रेजिमेंट फ्रॉम दैट एरिया। डेल्टा, ब्रावो और अल्फा कंपनीज के ऊपर दुश्मन के हमला एकदम फ्रंटली हुआ था। दुश्मन के 3rd इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन के टैंक्स इन्फेंट्री सपोर्ट के साथ आए थे एट फर्स्ट ऑन डेल्टा कंपनी, जिसको एकदम तबाह किया गया था विद आर्मर्ड सपोर्ट फ्रॉम चार्ली स्क्वाड्रन एंड द डिफेंसेस ऑफ डेल्टा कंपनी। लेकिन इतना भी नसीब अच्छा नहीं था फॉर डेल्टा कंपनी, क्योंकि एक पाकिस्तानी M24 शैफी टैंक उनके डिफेंसेस के एकदम 25 मीटर के आसपास आ गए थे बिफोर बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड बीइंग शॉट टू फ्लेम्स। लेकिन फिर भी दुश्मन का हमला बहुत ही जोरदार हो रहा था। दुश्मन का आर्टिलरी फायर और उसके साथ टैंक्स और इन्फेंट्री का रिलेंटलेस फायरिंग डी कंपनी के रिकॉइललेस टीम को पीछे धकेल दिया था। इस रिकॉइललेस टीम का कमांडर था हविलदार लेखराज और वो अपने रिकॉइललेस राइफल के साथ वहां पे डटे रहे, ये सोचते हुए कि उनको एक चांस तो मिलेगा दुश्मन का एक टैंक तबाह करने के लिए। तो डेल्टा कंपनी के पीछे जो टैंक आ गए थे ऑफ द एनिमी M24 शैफी टैंक, उसको हविलदार लेखराज ने अपने रिकॉइललेस राइफल से तबाह कर दिया था। This was the only tank that was going to be destroyed by the 14 पंजाब, लेकिन उनके ऊपर भारी इन्फेंट्री का हमला अभी भी चल रहा था। हमले के वक्त कैप्टन पीपी चतुर्वेदी आर्टिलरी फायर डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी गोलियों ने उनको हिट किया था। तो कैप्टन गुरमुख सिंह गिल कैप्टन चतुर्वेदी को वहां से इवैक्यूएट कर पाए थे और उन्होंने ही ये जो पाकिस्तानी टैंक को हिट किया गया था विद आरसीएल गन फायर, उस टैंक के ऊपर से कैप्टन गुरमुख सिंह गिल ने देखा कि उस टैंक का कमांडर निकल रहा है फ्रॉम द टरेट हैच। उस कमांडर को कैप्टन गुरमुख सिंह गिल ने ही शूट डाउन किया था। दिस पाकिस्तानी टैंक कमांडर वाज एक्चुअली द कमांडर ऑफ द 3rd इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन। उनको मारने के बाद वो कैप्टन पीपी चतुर्वेदी को घसीट के और अपने कंधे पे लेके आ रहे थे एंड ऑन द वे दुश्मन के फायरिंग उनको बहुत हैरास कर रहा था। वो अपने साथी को नीचे उतर के दुश्मन के ऊपर फायर खोलते थे और जब एरिया क्लियर होता था तब कैप्टन चतुर्वेदी को अपने पीठ पे लेके या घसीट के लेके जा रहे थे टुवर्ड्स सेफ्टी। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा ब्रेवरी था ऑफ सूबेदार मलकियत सिंह। सूबेदार मलकियत सिंह अपने प्लेटून को लीड कर रहे थे और उनके जो प्लेटून के पोजीशंस था उनके ऊपर बहुत भयंकर पाकिस्तानी मशीन गन फायर हो रहा था। पाकिस्तानी M24 शैफी टैंक से भी मशीन गन फायरिंग उनके ऊपर हो रहा था और पाकिस्तानी जवानों ने भी उनके ऊपर फायरिंग खोल दिए थे।
उनके पोजीशंस के 50 मीटर्स के पास दुश्मन के जवान आ चुके थे और उनके प्लेटून को पिन डाउन कर दिए थे। सूबेदार मलकीत सिंह और उनके प्लेटून वेर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। वैसे तो उनके पोजीशन के ऊपर मशीन गन फायरिंग चल रहा था और तभी दुश्मन ने अपना हैंड ग्रेनेड का पिन निकाल के उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। एक के बाद एक हैंड ग्रेनेड उनके पोजीशन के ऊपर गिरता रहा और वो ग्रेनेड्स को पकड़ के उनको दूसरी तरफ फेंक देते थे। लेकिन एक ग्रेनेड के विस्फोट के बाद सूबेदार मलकीत सिंह वाज वेरी मच वुंडेड, लेकिन फिर भी अपने साथियों को बचाने के लिए वो अपने कवर पोजीशन से निकल के दुश्मन के ऊपर फायर खोल दिए थे और 2 पाकिस्तानी मशीन गनर्स को मार दिए थे। लेकिन इसके लिए भी ही वाज शॉट ट्वाइस बाय द एनिमी इन्फेंट्री, लेकिन वो दुश्मन के इन्फेंट्री को तबाह करता रहा टिल द एनिमी वाज फोर्स्ड टू कॉल इन द शैफी टैंक्स ऑन हिम। तभी अनफॉर्चुनेटली एक M24 शैफी टैंक डिस्टेंस से उनके ऊपर एक शेल फायर किया और इस शेल का श्रैपनल से सूबेदार मलकीत सिंह बहुत ही भयंकर तरीके से घायल हो गए थे। उनके शरीर में बहुत ज्यादा श्रैपनल का घाव हो चुका था और अपने वुंड्स के लिए वो बैटलफील्ड में ही मारे गए थे। यहां पे आपको डिफेंसेस दिखाई दे रहा है। सी कंपनी ऑफ द 14 पंजाब वाज हियर, बी कंपनी वाज हियर, ए कंपनी वाज हियर एंड डी कंपनी वाज हियर। These two troop of tanks in blue were under the command of Captain Balram Singh Mehta, and these two troop of tanks were under the command of Major Daljit Singh Narak. He was taking care of the east flank. Captain Balram Singh Mehta was taking care of the western flank. तो पहले 6 पंजाब दुश्मन के हमला कर दिया on Charlie Company after the artillery barrage was lifted, followed by 1 company of East Pakistan Civil Armed Force. The tanks from the 3rd Independent Armored Squadron, M24 Shafi tanks, the 22 Frontier Force and 21 Punjab, each attacking on these defenses of these 3 companies of the 14 Punjab and these tanks. इस हमले को पूरा तबाह कर दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजर दलजीत सिंह नारक was killed in action और दुश्मन के 5 टैंक्स फ्रॉम द 3rd इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन वर डिस्ट्रॉयड। एक दुश्मन का टैंक तो पीछे चला गया था ऑफ द डिफेंसेस ऑफ द 14 पंजाब और उसको 14 पंजाब के रिकॉइललेस राइफल के फायर की वजह से तबाह कर दिया गया था। टोटल 5 टैंक इस हमले में चला गया था फ्रॉम द एनिमी साइड एंड ऑन द सेकंड काउंटर अटैक all these forces attacked again and this time with the death of Major Daljit Singh Narak, Captain Balram Singh Mehta was taking charge of all these tanks. इस हमले में 3rd इंडिपेंडेंट स्क्वाड्रन के 5 और टैंक्स तबाह किए गए थे, लेकिन एक और कैजुअलिटी हो गया था which was 2nd लेफ्टिनेंट तेजिंदर सिंह सिद्धू's टैंक। टैंक का कमांडर द 2nd लेफ्टिनेंट had survived, लेकिन उनका टैंक तबाह हो गया था फ्रॉम दिस अटैक। चार्ली स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी ने 10 पाकिस्तानी टैंक्स तबाह किए थे और एक पाकिस्तानी टैंक को 14 पंजाब ने तबाह किए थे। टोटल 11 पाकिस्तानी टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड व्हाइल 3 वर कैप्चर्ड। चार्ली स्क्वाड्रन का इस ओपन एरिया का फायर सपोर्ट और 14 पंजाब का डिफेंसेस को दुश्मन तोड़ ही नहीं पाए थे। फर्स्ट काउंटर अटैक में वो जगन्नाथपुर की तरफ भाग गए थे और दूसरा काउंटर अटैक फेल होने के बाद they fled again from this area. Garipur was in Indian hands, finally secured. These enemy battalions suffered a lot of casualties with 300 plus dead and wounded. दुश्मन का ये 3rd इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फायर सपोर्ट था, वो एकदम तबाह हो गया था। जसोर तक जाने के लिए अब कोई भी सिग्निफिकेंट आर्मर्ड थ्रेट was not there for the Indian armed forces in this area. लेकिन अनफॉर्चुनेटली चार्ली स्क्वाड्रन का 2 टैंक्स यहां पे बर्बाद हो गया था। चार्ली स्क्वाड्रन कमांडर वाज डेड। इस बैटल में 14 फील्ड रेजिमेंट और 102 इंजीनियरिंग रेजिमेंट का सपोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था फॉर द 14 पंजाब एंड द 45 कैवलरी रेजिमेंट। 14 फील्ड रेजिमेंट के आर्टिलरी सपोर्ट दुश्मन के ऊपर दुश्मन को पिन डाउन करने के लिए बहुत ही जरूरी था। 14 पंजाब रेजिमेंट भी अपने वीरता के लिए बहुत ज्यादा सम्मानित हुए थे। सूबेदार मलकीत सिंह को पोस्ट्यूमसली महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन गुरमुख सिंह गिल वाज अवार्डेड विद द वीर चक्र और लेफ्टिनेंट कर्नल राजकुमार सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लेकिन हिंदुस्तानी फौज और टैंक्स का प्रॉब्लम्स यहीं पे खत्म नहीं हुआ था।
दुश्मन ने ढाका से पाकिस्तानी F-86 सेबर्स को भेज दिए थे on the 22nd of November 1971 to strafe on these helpless tanks and the 14 Punjab. पाकिस्तानी F-86 सेबर्स का स्ट्रेफिंग फायर कुछ कैजुअलिटीज किए ऑन बोथ द टैंक क्रूज ऑफ द 45 कैवलरी एंड द ग्राउंड इन्फेंट्री, लेकिन उनको पता नहीं था कि भारतीय एयरफोर्स भी अपने एयर पावर भेज रहे थे. 4 फाइटर नेट्स फ्रॉम द 22nd स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अराइव्ड एंड कमेंस्ड देयर एयर बैटल अगेंस्ट these 3 पाकिस्तानी F-86 sabers. Though Pakistani sabers were shot down, but there was no casualty from the Indian Air Force. इन दोनों पाकिस्तानी पायलट्स को कैप्चर किया गया था by the 4th Sikh Regiment on the north, and one of their aircrafts had actually crashed into Bongaon. दुश्मन के ये फाइटर जेट्स were destroyed near the Boira salient, जो हमने पहले मैप में दिखाया था. The captured pilots were Flying Officer Khalil Ahmed and Flight Lieutenant Parvez Qureshi. And this famous air battle is known as the Air Battle of Boira. 45 Cavalry Regiment के ऊपर और 14 पंजाब रेजिमेंट के ऊपर जो एयरफोर्स का भी हमला हो रहा था उसको भी बंद किया गया. गरीबपुर के इस बैटल के बाद जहां पे मेजर दलजीत सिंह नारंग ने अपने खून से 45 कैवलरी रेजिमेंट का पहला पन्ना लिख दिया था, इस हमले के बाद जसोर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज का कोई भी आर्मर स्ट्रेंथ नहीं था एंड दे वर नॉट मेंट टू गेट एनी आर्मर सपोर्ट एज वेल. 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभी फाइट करने वाले थे विदाउट एनी आर्मर सपोर्ट. ये एक बात भारतीय कमांडर्स बोल रहे थे कि अभी तो रास्ता पूरा खाली है, पूरा क्यों नहीं भेजा जाए टुवर्ड्स जसोर. लेकिन अपने टैंक्स को रीडिप्लॉय करके 14 पंजाब के साथ 40 स्क्वाड्रन गरीबपुर में बैठ गए थे एंड दे वर नॉट टू मूव अंटिल फर्दर ऑर्डर्स. बैटल ऑफ गरीबपुर में 14 पंजाब रेजिमेंट हैड अबाउट 70 कैजुअलिटीज, जिसमें से 28 मारे गए थे एंड 42 वर वुंडेड इन एक्शन. 45 कैवलरी का 2 टैंक्स खत्म हो चुका था. और ये बात आप एक बार सोच के देखिए कि अगर 14 पंजाब बिना आर्मर सपोर्ट के गरीबपुर में जा चुके होते तो क्या हालत होता उनका बाय द हेवी ऑनस्लॉट ऑफ द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस एंड देयर आर्मर सपोर्ट. गरीबपुर में इस हमले के बाद और बोयरा सैलियंट के पास ये जो 2 पाकिस्तानी जेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया था विद द 3rd एयरक्राफ्ट बीइंग शॉट एंड ट्रेलिंग बैक टुवर्ड्स ढाका. इसके बाद American President Nixon, who was a supporter of Pakistan, he became outrageous. He turned India as an aggressor and he ordered Henry Kissinger to tilt their policy towards favoring Pakistan. उन्होंने ये भी बोला कि देखिए इंडिया और USSR का रिलेशंस बहुत अच्छा है, so this action at Garipur might be a chal for USSR to humiliate the US through the use of Indian forces to destroy Pakistani armor. ये एक बहुत ही बेसलेस कमेंट था, लेकिन प्रेसिडेंट निक्सन सेड इट एनीवे. इस हमले के बाद ये 2 पाकिस्तानी जंगी जहाज को डिस्ट्रॉय करने के बाद पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जनरल याहिया खान डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन पाकिस्तान, जो अनऑफिशियली डायरेक्टेड अ वॉर विद इंडिया. जनरल सैम मानेकशॉ भी ऑर्डर्स पास कर चुके थे फॉर द इंडियन आर्मी टू एंटर बांग्लादेश. तो अभी क्या होने वाला है विद द 45 कैवलरी रेजिमेंट एंड द 9th इन्फेंट्री डिवीजन विद देयर टारगेट टुवर्ड्स जसोर एंड खुलना? इसको जानने के लिए कीप ऑन वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोस ऑन 1971 वॉर बुक सीरीज.